Good morning, students. Welcome to the online class. I hope you all are enjoyed your Diwali festival. Okay. So, students, today is your computer class from Monday to Saturday. Okay. So, we will continue our chapter 8, creating procedure with PowerPoint 2010. Okay. So, let us start our today's work. Today's work is explanation of this chapter. Okay. So, students, read and understand very carefully, and if you have any doubt about this chapter, so ask me in your class group. Okay. So let us start our today's work, chapter 8, PowerPoint 2010. So students, let us start our explanation of chapter 8. Students, we already discussed these topics, that what is a presentation, parts of MS PowerPoint window, inserting text and various objects in a presentation, saving a presentation, and MS PowerPoint 2010. Okay, so now I will discuss today these two topics, creating a presentation and closing PowerPoint presentation. Okay, so students, let us start our today's work. As I told you, that I already discussed you the inserting objects, that what is inserting objects, and inserting a new slide. Okay, so इस तरह से हम अपनी नई स्लाइड इसमें इंसर्ट करते हैं, ये मैंने बताया था। जैसे कि हम एक नई फाइल बनाते हैं, उसी तरह हम इसमें भी नई स्लाइड इंसर्ट करते हैं। तो आपको इसमें बताया गया है, ठीक है। हाउ वी कैन इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। सो स्टेप 1, क्लिक ऑन द होम टैब। होम टैब पे जाएंगे। स्टेप 1, क्लिक ऑन द होम टैब like this. Okay. Step 2, click on new slide option in the slide group. So after that new slide will open. Okay. And इसका शॉर्टकट भी है, कीबोर्ड शॉर्टकट टू ओपन अ न्यू प्रेजेंटेशन इज Ctrl+N. Okay. Now our second topic is changing the slide layout. So you may need to place text and objects differently in various slides. Some slides require you to just type text, while on other you need to put a picture with text, and yet another slide you may need to place just picture. For this, MS PowerPoint has some slides layout to choose from them. Okay, changing the slide layout. This. सो स्टूडेंट्स, आपके इसमें तरह तरह की स्लाइड्स होती हैं, जिसमें अगर आपको केवल टेक्स्ट टाइप करना है, केवल टेक्स्ट मैसेज ही लिखना है, तो उसके लिए आप ये स्लाइड सेलेक्ट करेंगे। ओके। अगर आपको पिक्चर्स देखना है, ओनली इसमें पिक्चर्स इंसर्ट करना है, तो आप इसमें ये स्लाइड सेलेक्ट करेंगे। एंड आपको 2 पिक्चर्स सेलेक्ट करनी है, इसमें लानी है, तो आप इसको 2 पिक्चर्स को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। तो इस तरह से आपकी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्लाइड्स हैं, तो आपको जो भी स्लाइड चाहिए अपने फाइल के अकॉर्डिंग, जैसे आपने कुछ आप ऐसे लिख रहे हो, मीन्स जैसे आपने लिखा माई हाउस या माई स्कूल, उस पर आपको ऐसे लिखना है, तो उस पर ऐसे लिखने के लिए आपको पहले तो एक पिक्चर चाहिए अपने स्कूल की। ओके। आफ्टर दैट उस पर आपको कुछ टॉपिक्स लिखने हैं, तो आपको टेक्स्ट मैसेज का भी ऑप्शंस चाहिए। तो आपको उसमें पिक्चर्स भी चाहिए, और टेक्स्ट लिखने के लिए, टेक्स्ट मतलब क्या होता है कि रिटन वर्क लिखने के लिए, टाइप करने के लिए आपको ऐसा इसमें स्लाइड सेलेक्ट करनी है कि जिसमें हम टेक्स्ट भी लिख सकें और पिक्चर भी ऐड कर सकें। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट स्लाइड, है ना। दिस इज़ द बेस्ट स्लाइड, जहाँ पे आप पिक्चर्स भी लिख सकते हैं और टेक्स्ट मैसेज भी लिख सकते हैं। ओके। तो
How we can select this? Step 1, click on the Home tab. Step 2, select Layout option from the slide group. Various layout option will appear. Okay. So इस तरह से हम अपनी ये स्लाइड ओपन कर सकते हैं. Now, last step, step 3, select the layout that best suits your need. Okay. So our next option is inserting objects. Okay. So students, you have learned to type text into placeholder and also learn to insert various slide layout. Now learn how you can insert various objects in the placeholder, pictures, tables, smart art, word art, etc. You all treated as object. Insert tab give you to the choice to insert different objects in your presentation. Students, इसमें इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट्स में आपको आपकी जैसे कोई आपने नोटपैड पे कोई फाइल बनाई है या आपने पेन ब्रश में कुछ आपने सीनरी ड्रॉ की है, तो आप अपनी इस स्लाइड पर वो चीज़ ला सकते हो. ठीक है. मैं इसको कल प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाऊंगी लैपटॉप पे करके. अभी आप इसमें इस तरह से समझ लीजिए. ठीक है. कल मैं प्रैक्टिकली लैपटॉप पे आप लोगों को पूरी ये how we can create a presentation, how we can create a new slide, how we can changing a new slide. तो ये सारे ऑप्शंस मैं उस पर डेमो करके दिखाऊंगी. ओके. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंसर्टिंग टेक्स्ट. हम कोई टेक्स्ट इसमें कैसे इंसर्ट करते हैं. टू इंसर्ट text in a blank slide, follow these steps. Step 1, click on the Home tab. Step 2, click on the text box option in the text group. Step 3, hold and drag the mouse to draw a box, and box with blinking cursor will appear. Type inside the box. You can move around the text box in the slide by pressing the holding down the mouse. Okay. स्टूडेंट्स, हम इसमें किस तरह से अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं ये देखिए किसमें दिखाया जा रहा है. स्टेप 1, क्लिक ऑन द होम टैब. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन क्लिक ऑन द होम टैब. आफ्टर दैट स्टेप 2 इज ओपन. सो क्लिक ऑन द टेक्स्ट बॉक्स. टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे हम. इस पे ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, इस पे हम क्लिक करेंगे हैं तो हमारा ये ब्लॉक खुल जाएगा टेक्स्ट ग्रुप. सो स्टेप 3 में क्या करेंगे, होल्ड एंड ड्रैग द माउस. जब आप होल्ड करके माउस को इसको ड्रैग करेंगे, इसको अपनी तरफ खींचेंगे, मीन्स आपको अपना हाथ माउस से नहीं उठाना है. ओके. इसको खींचेंगे तो अ बॉक्स विद अ ब्लिंकिंग कर्सर विल अपीयर. एक बॉक्स आपका अपीयर हो जाएगा और आप उसमें अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं. ओके. सो स्टूडेंट्स, इस तरह आप इसको कर सकते हैं. अब अपने आप उस टेक्स्ट में इमेज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं. सो स्टेप 2, इंसर्ट इमेज इन ए ब्लैंक स्लाइड. एक ब्लैंक स्लाइड पे हम आपको अपनी इमेज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं. मीन जैसे मैंने पहले बताया था कि हमने पेंट ब्रश पे कोई हमने इमेज ड्रॉ करी. मीन्स आपने पेंट ब्रश पे कोई सीनरी बनाई है, आपको उसको अपनी किसी और फाइल पे ओपन करना है. तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं. Step to insert image in a blank slide. Click on the Insert tab. In the image group, click on Clip Art button. Clip Art Gallery appears on the right side of the screen. Step 3, type the keyword in the search for box on which you want to insert image and click on Go. For example, type flowers in search for box and then click Go. So you will see various pictures appear in the gallery. Last step, step 4, double click on the preferred picture to insert it. Resize the picture by dragging from the corners. Okay.
आप सबसे पहले हम स्टेप 1 ये देखिए दिखा हुआ है, हम इंसर्ट टैब में जाएंगे। हमारा क्या खुल जाएगा, क्लिप आर्ट, पिक्चर्स, फ़ोटो एल्बम, स्क्रीनशॉट। तो हमें क्लिप आर्ट से अपनी पिक्चर को लेना है। तो हम स्टेप 2 में इस पर क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर हमारी आ जाएगी। ये देखिए इसमें 2 पिक्चर्स पड़ी हैं हमारी क्लिप आर्ट में। तो जिस पिक्चर को हमें सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने इस पिक्चर को सेलेक्ट करना है, मैंने सेलेक्ट किया, डबल क्लिक किया तो ये हमारे इस स्लाइड में आके ओपन हो गई। और इसके कॉर्नर पर क्लिक करके हम इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं। ओके, माउस को यहाँ रख कर उसको ड्रैग करेंगे, उसका साइज़ हमारा बड़ा हो जाएगा हमारी पिक्चर का। तो इस तरह से बच्चों ये हम करेंगे। इसी तरह से हम कई सारी पिक्चर्स इंसर्ट करके यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, टुडे मैं इतना ही आज आप लोगों को पढ़ाऊँगी और कल आप लोगों को लैपटॉप पे इसका मैं डेमो पूरा करके दिखाऊँगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू।